خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. تو باسم آپ کون سی سناؤ گے؟ چلو وہ سنا جو سی بھی آپ کو سنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سبحان اللہ ماشاءاللہ. آپ کون سی بیٹا سنا؟ انشراح. چلو سنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. یہ ہماری بڑی کہہ لیں کہ آنر ہے کہ بچے جو ہیں وہ الحمدللہ کہ جاتے ہیں اور ہمارا کہنا مانتے ہیں مسجدوں میں، اور جو بھی انہوں نے ابھی تک سنایا ہے اس سے زیادہ ہی ان کو آتا ہے. یہ مطلب آپ کو بھی پتہ، اور مطلب میں جو ہمارے عزیز یہاں پہ بیٹھے ہیں دوست احباب ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں تاکہ ان کے دلوں میں یہ ایک جو جذبہ ہے نا وہ پیدا ہو کہ اگر ہم کوشش کر رہے ہیں تو سارے کے سارے جو ہے نا وہ مل کے جو ہے وہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ بھیجیں مسجدوں میں. آفتاب اس کو عبداللہ کو یا اس کو کوئی ہے کوئی صورت تو آتی تو ہے لیکن جھجک ہوگی. علی تو ہمت کرو. جھجک کی کون سی بات ہے؟ سارے آپ نہیں ہیں. بسم اللہ کا نام ہے، اس کو آپ سب کے سامنے دیتے ہیں. کوئی بھی صورت سنا دینا اس کی طرح نہ کرتے ہیں، بازی کرتی ہیں جس طرح باسی نے سنایا. باسم نے بھی تو سنائی نا قل هو اللہ سنا دی. اگر آپ کو وہ آتی ہاں کلمہ سنا دو. بسم اللہ پڑھ کے نا. نہیں آتے. چلو ٹھیک ہے. بسم اللہ پڑھ دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اونچی کیا اونچی پڑھو نا. الحمدللہ پڑھ لو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. جی عبداللہ بھی آپ کو پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. یہ شروع کریں. چلو جی عبداللہ آپ ہی سناؤ بیٹا. ابھی شرجیل بھی سنائے گا. آپ سناؤ. نہیں آپ میرے بچے ہو نا. چلو وہ دیکھو ماما بھی دیکھ رہی ہیں. خوش ہو گئے. چلو چلو ہم کیا پڑھتے تھے آپ صبح اٹھ کے؟ چلو رات کو سوتے ہو. چلو چلو شرجیل کی ابھی بات چلیں کوئی بات نہیں. اور کسی بچے کو آتی ہے؟ عبداللہ زینب سنائے گی. پھر کہانی لمبی ہو جانی.
दादा उधर आ जाए। चलो बिस्मिल्लाह सुनाओ। शजील आपको बिस्मिल्लाह सुना दो, कोक पिलाते हैं। सारे बच्चे माशाल्लाह इतने प्यारे हैं, अल्लाह इनको अच्छा मैं बता रहा हूँ ना, कोक पिलाते हैं। नजर ना लगे। चलो बिस्मिल्लाह सुना दो जल्दी। सुना रहा? अच्छा चलो अच्छा, ये जो हमने महफिल यहाँ पे रखी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसे आफ्ताब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उसने हमें ये मौका दिया कि हम मतलब ये ऑर्गेनाइज़ कर सकें अपने घर में, और इसने हमारी बात मानी। ये हमारी ये खुशकिस्मती है, और ये बड़े खुश नसीब वो लोग होते हैं जो इस तरह की महफिलें अपने घरों में या जहाँ भी उनको मतलब जहाँ भी उनको मौका मिलता है वो वहाँ पे जाते हैं और अटेंड करते हैं उनको ऑर्गेनाइज। मैं थोड़ा सा जो है वो मतलब हमें तो पता ही है जश्न ईद मिलाद नबी जो भी ये इवेंट है, जो ये महीना जा रहा है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मिलाद का मतलब 12 रबीउल अव्वल का वो दिन है, और ये महीना ख़ास तौर पे इतना बाबरकत है जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन असल मकसद ये है कि हमारे बच्चों को पता है इस चीज़ का, तो वो मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा जो है वो हम यहाँ पे बैठ के इकट्ठे ही तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें ताकि इन्हें भी पता हो कि ये क्या है। पहली बात तो ये कि वो हकीकत तो यही है कि हम इस दिन को मनाते इसी मकसद के लिए कि वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का एक महीना है। लेकिन असल हकीकत इसकी क्या है कि हम क्यों मनाते हैं ये चीज़, मतलब ये जो हम इस तरह के इवेंट हैं वो क्यों ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसकी अगर आप हिस्ट्री में अगर हम जाए ना, मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है कि मैंने कहा देखूँ तो सही कि क्या लोग शुरू में करते रहे और वो किस तरह ये शुरू हुआ। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुझे वो खुतबा जो है वो लास्ट खुतबा जो है वो याद आया जिसमें उन्होंने क्लियरली ये बात कही है कि आपका ईमान उस वक़्त तक कंप्लीट नहीं होता जब तक आप मेरे से मोहब्बत नहीं रखते। तो वो मोहब्बत जो है वो हमें किस तरह होगी उनसे, वो क्या तरीके हैं, वो यही तरीके हैं जो हम इस वक्त कर रहे हैं कि उनको हम याद करें और उनकी बातें करें और आपस में जो है उनके नगमात जो है वो पढ़ें और खुदा ताला से मतलब खुदा ताला की तारीफ़ हो, उनकी तारीफ़ हो। ये एक मतलब एक तरीका होता है जिससे हम अपनी एक मोहब्बत जो है वो उससे इजहार कर सकते हैं। अब इसमें शुरू में ये होता था कि मतलब अगर आप सहाबा कराम की ज़िंदगी को देख लें कि उनको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत थी वो भी एक नेचुरल थी कि वो उनके पास हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे, उन्होंने देखा था उनको, तो वो मोहब्बत उनके साथ रही है। अब उसके बाद वो एक और जनरेशन आई है जिन्होंने सहाबा कराम से सुना है कि वो किस तरह थे, किस तरह ज़िंदगी गुजारते थे, उनके क्या अमाल थे। तो वो उनकी मोहब्बत जो है वो सहाबा कराम की निस्बत थोड़ी सी कम थी। फिर कह रहे हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता जनरेशन टू जनरेशन जो है वो कम होती है। तो लोग जो है वो फिर इस सोच में पड़ गए कि इसको किस तरह फिर जो है ना बरकरार रखा जाए इस मोहब्बत। तो उसके लिए फिर उन्होंने क्या किया कि ये ज़्यादातर जो मतलब ये कमी आई है मोहब्बत में वो क्रूसेड वार से भी आई है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जंगों में मसरूफ़ हो गए, उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो कोई इस तरह की कोई महफिल ऑर्गेनाइज़ करें। लेकिन वो उसके बाद फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि ठीक है जी हम क्या करते हैं कि उनकी पैदाइश का एक जो दिन है उस महीने को हम पूरे जो है वो याद रखें और स्पेशली जो 12 रबीउल अव्वल है उसको हम अपना एक ऑफिशियल एक दिन बना लें कि जिसको हम मनाएं और हम उनकी याद करा करें और उससे जो है वो मोहब्बत बरकरार रहती है। तो ये एक ख़ास एक बैकग्राउंड है उसकी कि हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। वो यही रीज़न है कि हमारे अंदर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है वो बरकरार है और वो उसका बेहतरीन तरीका जो है वो यही है जो इस वक्त हम महफिल में बैठे हुए हैं। बेहतरीन तरीका यही है। हुज़ूर पाक खुदा ताला